Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has now arrived at the Rouse Avenue Court, is what we are learning at this point of time. Remember, viewers, a very crucial hearing is slated to take place very shortly. Of course, the latest that's coming in at this point of time, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has now reached the Rouse Avenue Court. So this, of course, the latest that's coming in at this point of time. Viewers, remember, during his hearing last week, the Rouse Avenue Court had extended the custody of CM Arvind Kejriwal till today while they were seeking the extension for his remand. The Enforcement Directorate had argued that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal needs to be brought face to face with some of the accused in the case, and also stated that the data on one of his mobile phones belonging to his wife Sunita Kejriwal was extracted and is being analysed. So now, of course, the latest that's coming in at this point of time, after an extended remand which is now ended, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has arrived at the Rouse Avenue Court. My colleague Arzu Seth joins us on the broadcast to give us more on this. Arzu, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has now arrived at the Rouse Avenue Court for a very crucial hearing. What details can you share with our viewers? What's the latest that's coming in? Well, yes, Asavri, the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has reached the Rouse Avenue Court, and also, the remand in the Enforcement Directorate ends today, and he will, be presented in the court as he has appeared. And also, according to the sources, the ED can ask for the extension of the Delhi CM remand, citing his lack of cooperation with the agency. Earlier also, the CM, when he was presented in front of the court on 28th of March, he said that, before the court bench, stating that within the 31,000-page documents compiled by the ED, there was no solid evidence or accusation against him that justify his arrest. And also, ED has in fact claimed several things. ED, during the last request for the remand, stated that during the Kejriwal custody interrogation, his statement was documented over 5 days, noting that he consistently provided invasive responses, and highlighting this among other reasons that ED asked for an extended remand on March 28. And today also, there are several things that are left. ED also said that, they will make a confrontation with the other individual involved in this excise policy case. So this remains to be seen, what happens today. As Arvind Kejriwal, right now I am at the court, and Arvind Kejriwal has reached the Rouse Avenue Court, and, the proceeding is about to start. Yes. Right, absolutely, Arzu. So, of course, from what we are learning at this point of time, the possibility of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, being granted a bail seems unlikely. Is what is coming in at this point of time. Give our viewers more details on this. How further can this then escalate? Well, Asavri, the Arvind Kejriwal will be presented. He has reached the court. But as the ED has said, there are individuals in front of them. The Arvind Kejriwal will be confronted. As a few days back, we have seen how Kailash Gehlot, the AAP minister, was called to the ED. He was given summon, and he was grilled by the ED for around 5 hours. There were several questions that are being asked to the Kailash Gehlot related to the excise policy. So continuously we are seeing that the individuals are being called to the ED office, and questions are being asked. Also, ED has said that they have, grabbed the phone of the Delhi CM wife, Sunita Kejriwal, and they are analysing the phone. Also, there are several devices, like they have said that they have confronted, they have 4 other devices, but the password of those devices were not given by Arvind Kejriwal. As he consulted with his lawyer, and he said that he needs some time to give the password of those devices. So still there are some devices whose data will be analysed. So there are several things that are still left. So ED can ask, what the sources are telling. Right, absolutely, Arzu. As you give us information on this, we of course right now had live visuals coming in from the Rouse Avenue Court, where of course a crucial hearing is slated to take place very shortly. So of course, latest visuals coming in at this point of time from the Rouse Avenue Court. Remember, viewers,
Of course, there's a crucial hearing going on. Whether Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will be granted a bail or not is the big question that remains unanswered. But for now, of course, live visuals are flashing on your screens. All right. In fact, Arzu still with us on the broadcast. Arzu, you were giving us more details. Continue, please. Yes, so Asabri, I was telling you that, the Arvind Kejriwal will be, is inside the court and will be presented in front of the court. But the thing is, the ED might, what our sources are telling, that ED might ask for the extension of the remand. But if ED does not ask for that, Arvind Kejriwal might go to the Tihar jail today itself. He might be sent to the judicial custody. Also, what we are getting, that the preparations are also being made in the Tihar jail in the number 5 room. So this, this is the information what we are gathering, that the preparation at the Tihar jail is also being made. Earlier also, when the summon was given to the Arvind Kejriwal, then also the preparations were being made at the Tihar jail, and now also information we are getting, that the preparation at the Tihar jail at the number 5 is being made. So if Arvind Kejriwal... Right, absolutely. Arzu, stay on with us. In fact, joining us at this point of time live is my colleague Javed Hussain. Javed, give our viewers an understanding on where you are at the moment, and also give us more details on these latest developments that are coming in. और देखिए, अरविंद केजरीवाल को 11:17 पर ईडी हेडक्वार्टर से लेकर यहाँ पर से निकला गया राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि ईडी 4 दिन की रिमांड कोर्ट के सामने रखेगी अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि अब इसमें देखना है कि कोर्ट रिमांड देती है या फिर जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो ये जानकारी है कि कुछ दिनों से तिहाड़ जेल के जेल नंबर 5 को पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जो समन का जवाब नहीं दे रहे थे और उस नोटिस पर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तब जेल नंबर 5 को पूरी तरीके से साफ किया गया था, सुरक्षा का पूरा एग्जामिन किया गया था और कैदियों को शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से रिमांड के बाद, अब दूसरी रिमांड के बाद ये खबर आ रही है कि सूत्रों ये बता रहे हैं कि 4 दिन की रिमांड रखी जाएगी, लेकिन अब कोर्ट को देखना है। वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ जेल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को ये बताया जा रहा है कि जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से सफाई और वहां के तमाम जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनसे एक मीटिंग बुलाई गई थी सीनियर तिहाड़ जेल अथॉरिटी की तरफ से कि सुरक्षा को लेकर कि कहां पे कौन से वार्ड में किस बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। हालांकि 1 नंबर की बात करें और 3 और 7 की, तो पहले से ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह वहां पर है। अब आज 11 बजे के आसपास जो है बताया गया था कि एक मीटिंग बुलाई गई है, हाई लेवल मीटिंग की तिहाड़ जेल के तमाम अथॉरिटीज को लेकर, सुरक्षा को लेकर कि अगर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो उनके लिए कौन सा जो वार्ड है, कौन सा बैरक है वो ज़्यादा सही होगा। लेकिन वहीं अब थोड़ी देर में जो है इस पूरे अरविंद केजरीवाल के पेश होने के बाद अब आर्ग्यूमेंट कोर्ट में शुरू होगा और अब देखना है कि राजधानी कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन इस 4 दिन में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है वो पूछताछ में ईडी सूत्रों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है जो क्वेश्चनिंग हो रही थी उसमें पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बीच कुछ लोगों को कन्फ्रंट कराया गया है अरविंद केजरीवाल के सामने बैठाकर, इस पूरे आबकारी जो पॉलिसी है शराब नीति का, इसमें लेकर अरविंद केजरीवाल के फ़ोन्स और कुछ और फ़ोन्स को लेकर भी ये बात आ रही थी कि कुछ पासवर्ड जो है फ़ोन्स को लेकर, जिससे कि डाटा उसके अंदर के जो डिजिटल एविडेंस के तौर पर ईडी उसकी जांच करना चाह रही थी, अरविंद केजरीवाल उसको भी लेकर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के जो कुछ अकाउंट्स है, अकाउंट्स के को भी टैली करना था, उसकी भी जो जानकारी है वो भी ईडी इस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मान रही है। तो ऐसे कई और कुछ पॉइंट्स है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड को लेकर जो अभी तक की जानकारी ईडी कोर्ट के सामने अपनी
अपनी तमाम दलीलें रखेगी। लेकिन वहीं ये भी खबर आ रही है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा जा सकता है। और जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल से इन्वेस्टिगेशन ईडी को बहुत करनी है इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें के कविता को कन्फ्रंट कराना, इसके अलावा कई और जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है। साथ ही जो गोवा के जिन दो लोग अमित पालेकर और रामा राव, उनके जो गोवा इलेक्शन में जिस तरीके से पूरा पैसा खर्च हुआ, उस पैसे को लेकर भी कहीं ना कहीं ईडी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और उनको आमने सामने कराना चाहती है। इसके अलावा कुछ जो डिजिटल इक्विपमेंट्स है एविडेंस के तौर पर अरविंद ईडी को उसको भी एग्जामिन करना है। कई ऐसे सवाल है कि जो पूरा एक मनी ट्रेल हुआ, जो 100 करोड़ की रिश्वत दी गई, कैसे इस पूरे जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, पॉलिसी कैसे बनाया गया, इसमें कैसे बेनिफिट देने की कोशिश की गई साउथ लॉबी को, ऐसे कई सवाल हैं जो अभी तक कई सवालों के जो जवाब है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जांच अधिकारी जो ईडी के उनको नहीं मिला है। तो ऐसे में अब कुछ ही देर में देखना है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। क्या अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा या फिर ईडी की तरफ से जो 4 दिन की जो जानकारी है कि ईडी 4 दिन की मांग रखेगी रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल के इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें अब देखना होगा कि ईडी अब कोर्ट में क्या क्या दलील देती उनके तरफ से रखा जाता है। कि अरविंद केजरीवाल का ये आ रहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कई सवाल ऐसे जिसको वो टाल रहे हैं, उनके फ़ोन्स के जो पासवर्ड और डिटेल मांगी गई वो प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो कई सवाल हैं जी। Right, absolutely. Javed, stay on with us. In fact, breaking news coming in at this point of time while being produced in court. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has hit out at Prime Minister Narendra Modi and said that what the PM is doing is not good for the country. So this is, of course, the latest that is coming in at this point of time. Viewers, a crucial hearing taking place at this point of time while being produced in the court. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has now hit out at the Prime Minister and said that what the PM is doing is not good for the country. अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं। So, of course, viewers, there you heard statements being made by the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Meanwhile, still with us on the broadcast is my colleague Javed Hussain. Javed, viewers have just heard the statements that have been made by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. What further details can you share with our viewers? देखिए, अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से रविवार के दिन जिस तरीके से एक महा रैली बुलाई गई थी आम आदमी पार्टी और इनसे अलायंस, जो कि इस आने वाले लोकसभा में जो चुनाव इलेक्शन में सब मिलकर जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ी, तो ऐसे में लगातार ये एलिगेशन है आम आदमी पार्टी, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके सपोर्टर्स लगातार ये कह रही है कि बीजेपी ने ईडी को मिसयूज़ किया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, और अरविंद केजरीवाल यानी कि हमारे नेता के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम पूरे जांच की बात करें, तो अगर ये भी खबर है सूत्र के हवाले से कि अगर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, तो जो सीबीआई है जिसने करप्शन एक्ट में इस पूरे मामले को दर्ज किया था, लिकर पॉलिसी को, वो भी अरविंद केजरीवाल से इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से अपील कर सकती है और उनको जो तिहाड़ जेल से कस्टडी में लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये देखना है कि सबसे बड़ी बात कि अभी कोर्ट की तरफ से क्या रुख होता है। ईडी अपनी तमाम जो उनके पास जो भी एविडेंस है, तमाम स्ट्रांगली एविडेंस के साथ उन्होंने दावा किया, सूत्र का कहना है कि वो कोर्ट में अपील रखेंगे, क्योंकि पहला जो रिमांड था अरविंद केजरीवाल का वो 6 दिन का था। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल को 4 दिन की रिमांड मांगी गई, जबकि ईडी 7 दिन की मांगी थी। ईडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कोर्ट को कि अरविंद केजरीवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर एक क्योंकि अभी मौजूदा वो सीएम है दिल्ली के, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल से ही
कई चीज़ें जाननी है इस पूरे लीकर पॉलिसी स्कैम को लेकर, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल इस पूरे लीकर पॉलिसी स्कैम को लेकर जवाब नहीं देते ईडी के सवालों का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा भी सीएम। Absolutely, Javed. Hold on to that thoughts, because latest developments are coming in at this point of time. ED has demanded Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to be sent to judicial custody. So, of course, latest developments coming in amid the hearing that is taking place. My colleague Javed still with us on the broadcast. Javed, of course, latest developments coming in at this point of time. ED has demanded Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to be sent to judicial custody. Give our viewers more details on this. देखिए, इसमें ये है कि जिस तरीके से अब ईडी के तरफ से लगातार ये खबर आ रही है कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यानी कि जो पहले से ही खबर थी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, तो ये जो अभी तक खबर आ रही है कि जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जा रहा है। और जिस तरीके से ये खबर आ रही थी कि तिहाड़ जेल को पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है, जेल नंबर 5 को, और हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा रही थी, तो इसमें से साफ ये एक मैसेज था कि कहीं ना कहीं अब एक इंटीमेशन है कि जिस तरीके से ईडी मांग सकती है 4 दिन की रिमांड, लेकिन खबर ये भी था कि अगर रिमांड में उनको नहीं भेजा जाता, कस्टडी में नहीं भेजा जाता, तो ऐसे में क्या स्टेप होगा। तो अब जो है कि 15 तारीख तक की बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सीबीआई, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो करप्शन एक्ट में कोर्ट से अपील करेगी और उसके बाद वो अरविंद केजरीवाल को अपने कस्टडी में क्या ले सकती है, क्योंकि सबसे पहला जो मामला दर्ज हुआ था वो करप्शन एक्ट में मामला दर्ज हुआ था लीकर पॉलिसी को लेकर, जिसमें मनीष सिसोदिया को पहले हिरासत में लिया गया था, उसके बाद ऑफिशियली तौर पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से लगातार लीकर पॉलिसी की जो एक चेन था, जो साउथ लॉबी, उसके बाद आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता, उनके बिचौलिए, तो एक बड़ा नेक्सस था जिसको लेकर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। उसके बाद फिर ईडी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग में मामला दर्ज करती है। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद इस पूरे लीकर पॉलिसी के नेक्सस को जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उसके बाद इसमें एक से एक कड़ी जोड़ी जाती है, क्योंकि सबसे पहले साउथ लॉबी का जिक्र होता है, वो भी विजय नायर से, जो कि अरविंद केजरीवाल का बेहद खास माना जाता है। और इस पूरी लॉबी, जो लीकर पॉलिसी को जो बनाया जा रहा था, जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती थी, हालांकि ये जो लीकर पॉलिसी जो था इसको कुछ दिन दिल्ली में इम्प्लीमेंट भी किया गया था, लेकिन उसके बाद जब इस पर सवाल उठने लगा और इस पर करप्शन का मामला सामने आया, तो इसको 2021 के आसपास इस पूरे लीकर पॉलिसी को बंद कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऐसे बड़े जो शराब कारोबारी हैं जिन पर ये ईडी की जांच में भी जो है और सीबीआई की जांच में भी सामने आया कि एक पूरा मनी ट्रेल हुआ था और बड़े शराबकारियों के द्वारा जो पैसे हैं वो दिल्ली। Absolutely, Javed. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.